Class today we will deal with the again we will deal with the physical geography of India. So that is the third part, and now we are moving to the first landform which you have, and that is the mountain. So we have the northern mountain complex, and that mountain complex, when I say the complex, so there is a different kind of the series within these mountain range, and it is started from here, that called to the Himalayas, Nanga Parvat to Namcha Parvat, and then we have to the Trans Himalayas to the Purvanchal, and that one is the Purvanchal. So that is the entire mountain complex. And northern mountain complex has a three different parts. So that is the region, the Himalayan Nanga Parvat to Namcha Parvat, and then we have to the Trans Himalayas and Trans Himalayas to the Purvanchal. So that is the starting point. And look, that is the complex. When we say the complex, so from here to here, and this curve is this particular complex. So how this landform has formed, how the Himalaya has formed, we have extensively discussed in the last videos also. So what happened, these CC collisions means the continental and continental boundaries. There is a two continental plates, one is the Indian plate and second is the Eurasian plates. So over the millions of years they collide, they converge, and that landform has been created. That called to the fold mountain, that is the tertiary kind of the माउंटेन, वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन इन द एंटायर वर्ल्ड. दुनिया में सबसे ज़्यादा नया बना हुआ हिमालय है. सेडिमेंट्री रॉक है, मैरीन ओरिजिन है, क्योंकि पहले समुद्र था, उसका हिस्सा ऊपर आ गया. और मज़ेदार बात है, जहाँ पे ये हिमालय रीजन्स था वहाँ पे समुद्र था, तो दोनों प्लेट्स आई तो जो वो हिस्सा ऊपर को आ गया. ये नॉट ए सिंगल रेंज ऑफ द चेन. हमने ये कहा कि एक सिंगल नहीं है बल्कि ये चेन है. हिमालय एक तरह की चेन है माउंटेन्स की. सो वी हैव द थ्री फेसेस, three kind of the Himalayas, and within the three kind of the Himalayas there is a different phases of the Himalayas formation. So we will not go to the geological age कि कब ये formed हुए, but the first part is the greater Himalaya. So when CNC continental plate collide, so that landform has plated. Here we have the Tibet plateaus in the extreme north, then Himalayas and the Ganges plain and the coastal plain there. सो ये तो आपने देखा कि किस तरह से ग्रेटर हिमालय बना. दैन द सेकंड अपलिफ्टमेंट, दैट मिड हिमालयस रीजन, ये आपका फिर मिड हिमालयस रीजन है ग्रेट के बाद. एंड द लास्ट वन इज द शिवालिक रेंज. और स्टिल दिस हिमालय इज राइजिंग. जैसे हम पढ़ते हैं ना, अभी भी माउंटेन एवरेस्ट ऊंचा हो रहा है. द रीजन इज दैट स्टिल दिस इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन, दिस इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट स्टिल दे आर समहाउ दे आर कोलाइडिंग विद टू द यूरेशियन प्लेट. तो अभी भी ये कंटिन्यूसली चल रहा है. कल जिस वीडियोस के बारे में हम बात कर रहे थे, कुछ सेंटीमीटर मिलियंस ऑफ ईयर्स, हर ईयर वो अपने आप कुछ सेंटीमीटर आगे बढ़ता रहता है. तो इस तरह से हिमालय अभी भी राइज हो रहा है, ऊंचा उठते जा रहा है. तो ये उसकी जर्नी है कि किस तरह से हुआ है. 55 मिलियन, 38 मिलियन, 10 मिलियन, और हम आज कहाँ पे आए. तो इस तरह से ये फॉर्मेशंस की कहानी है, प्लेट फॉर्मेशंस के कारण, यूरेशियन प्लेट के कारण. ओके नाउ हम देखेंगे हिमालय एक कॉम्प्लेक्स है, हिमालय में सीरीज है. तो हम उसको कैसे देख सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं. एक तो हम वेस्ट टू ईस्ट देखें और दूसरा हम नॉर्थ टू साउथ देखें. तो अभी हम ये नॉर्थ ऊपर हम बोलते हैं ना, नीचे साउथ आता है. नाउ वी विल ट्राई टू see the Himalayas, the series of the Himalayas or the division of the Himalayas from north to south. So north, this is the first range that called to the greater Himalaya. Greater Himalaya जिसको हम हिमाद्री बोलते हैं. The second range we have to the middle or lesser Himalayas known as the Himachal, and the third and the last is the Shivalik range. ठीक है. तो north to south आपने देखा, पहला ग्रेटर हिमालय, सेकंड मिडिल हिमालय, थर्ड शिवालिक. ठीक है, या आउटर हिमालय. तो इसको बोलेंगे हम हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक. तो तीन अलग अलग इस तरह के हैं. तो ग्रेटर हिमालयाज के बारे में बात करेंगे. ये दुनिया की हाईएस्ट एंड द मोस्ट कंटिन्यूस माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. ठीक है, माउंट एवरेस्ट भी वही है, नेपाल, सिक्किम, इंडिया. तो दुनिया का सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है. क्रिस्टलाइज रॉक है इसमें. माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, माकलू, दालूगिरी, मानुसुला, अन्नपूर्णा, ये सारी रेंज है. और नंदा देवी, ये जो हमारे उत्तराखंड में कुमाऊं में, कामेत, ये सारी की सारी रेंज आपके ग्रेटर हिमालयस रीजन में आती है. ग्रेटर हिमालयस के बाद आपका दूसरा रेंज अभी हमने देखा था मिडिल हिमालयस. मिडिल हिमालयस में इस तरह की डिसकंटिन्यूटीज़ है. देखो, ग्रेटर हिमालयस में कंटिन्यूटी था कि माउंटेन की सीरीज आपस में कनेक्ट है. यहाँ पे पीर पंजाल है, धौलाबाद है, ये आपकी हिमाचल वाली हो गई, नाग टिब्बा है, मसूरी है, कुमाऊं हिल्स है, और महाभारत नेपाल हिल्स है. तो ये आपकी दूसरी रेंज है ग्रेटर हिमालयस के बाद. मिड लेसर हिमालयस में ये कंटिन्यू नहीं है. थर्ड आपका शिवालिक है, हिमालयज का जो लास्ट पार्ट है. ये अपलिफ्टमेंट ऑफ टू द फुट हिल ऑफ द हिमालयस. तो आप कह सकते हो कि हिमालय का फुट हिल्स है, जहाँ से हिमालय शुरू होता है. और एलुवियल फैंस और जो भी चीज़ें नदियाँ अपने साथ लाती हैं उसके डिपॉजिट से बना हुआ है. और ये एक तरह से हिमालय के नीचे तलहटी में आप कह सकते हो. तो स्ट्रक्चर ऑफ द हिमालय अगर आप देखने की कोशिश करें, ये हिमालय का स्ट्रक्चर है.
ठीक है, ये पामीर नोड हिंदू कुश से लेके आपका पूर्वांचल तक इस तरह का आपका सेब है। तो अरावली एंड आसाम हिल्स, ये है अरावली हिल्स। यहाँ पे देखिए दो चीज़ है, एक ये अरावली हिल है और ये आसाम हिल है। तो ये पुश करते हैं और उसके कारण ये बीच में एक बैंट आता है आपका, ठीक है, देख रहे हैं आप। तो ये आपका इस तरह से स्ट्रक्चर है हिमालयाज़ का। मैं इतना ही स्टडीज़ करना है। मज़ेदार बात है कि हिमालयाज़ को हम कैसे डिवाइड करें उसको देखने के लिए हमने वाटर डिवाइड की मदद ली है। वाटर डिवाइड तीन तरह से अगर देखें तो ये इंडस वाली रेंज है, आपको पता है ना, पंजाब में हिंदुस्तान और पाकिस्तान वाले रीजन्स में निकलती हिमालय से है। तो एक तो ये इंडस नदी है, तो एक तो ये एक रेंज इसको हम देख सकते हैं। दूसरा आपका है, हम प्लेन वाले में भी इसको समझने की कोशिश करेंगे, दूसरा गैंगीज है, गंगा यमुना की जो है दूसरी रेंज ये है। तीसरी आपकी ब्रह्मपुत्रा है। तो हम कहेंगे कि इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्रा, कोसी, तो ये क्या करती हैं, ये ऊपर हिमालय से आती हैं, इरोजन्स करती हैं और अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स लेके आती हैं। वेस्टर्न और अब अभी तक हमने देखा था नॉर्थ साउथ हिमालय, अब हम देख रहे हैं वेस्टर्न ईस्टर्न हिमालयाज। तो हम देखते हैं कि एक तो नॉर्थ वेस्ट, ये तो आपका है नॉर्थ वेस्ट और ये है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो वेस्टर्न हिमालय जो है स्प्रेड है, आपको दिख रहा होगा, चौड़ा है, दिख रहा है ना इन तीनों में, ग्रेटर, लेसर और शिवालिक के बीच में चौड़ा है ये वाला हिस्सा। और ये जाते जाते जब हम ईस्टर्न में जाते हैं तो नैरो हो जाता है यहाँ आसाम के या पूर्वांचल रेंज में जाने तक। तो वेस्टर्न ब्रॉड है और दैट्स वाई शिवालिक यहाँ पे जो, क्योंकि इसके नीचे लास्ट में तो शिवालिक यहाँ क्लोजर आ जाता है इससे, इस हिमालय इन द, अच्छा, ईस्टर्न पार्ट देन द वेस्टर्न पार्ट। अच्छा, यहाँ शिवालिक क्लोजर आ जाता है, यहाँ दूर हो जाता है क्योंकि वहाँ वाइड नेट होने के कारण। इसको ऐसे भी देखा जाना चाहिए वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयाज किस तरह से है। तो पहला वेस्टर्न हिमालयाज को हम देखें तो इसकी बाउंड्री कैसे डिफाइन करेंगे, तो हमने क्या वाटर डिवाइड के हिसाब से, जो मैं पहले वाले में आपको दिखा रहा था, हमने वाटर डिवाइड के हिसाब से इसकी बाउंड्री को सेटल किया है। वाटर डिवाइड दिख रहा है ना, तो हमने कैसे किया है कि जहाँ आपकी इंडस आती है, इंडस से लेके काली रिवर, ठीक है, नेपाल से आने वाली जो काली रिवर है ये हमारा वेस्टर्न हिमालयाज है। और काली यानी उत्तराखंड में से ही लगता हुआ जो निकलता है ये काली रिवर हो गई। और काली रिवर से लेके ब्रह्मपुत्रा की रिवर तक आपका हो गया ईस्टर्न हिमालय। डायरेक्शन तो आपको पता ही है, डायरेक्शंस में इसको हम बोलेंगे वेस्ट, इसको बोलेंगे ईस्ट। तो वेस्टर्न हिमालयाज इंडस से लेके काली तक, नेपाल से जो निकलती है, और काली से लेके आपका ब्रह्मपुत्रा तक आपका हो गया ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयाज, ठीक है। तो दो तरह के हमने इस तरह का ये क्लासिफिकेशन देखा। अब ये हिमालयाज इस तरह से आपका आता है, ये बड़ा मजेदार है देखना। अगर हम ईस्ट से वेस्ट को जाएंगे, अच्छा, ईस्ट से वेस्ट को जाएंगे या वेस्ट से ईस्ट को आएंगे तो हमें इस तरह से हिमालय दिखेगा। पहला है कश्मीर हिमालय जिसको हम बोलते हैं, फिर कुमाऊं हिमालयाज है, पीर पंचाल सीरीज से इंडस सतलज है, इसमें कुमाऊं हिमालयाज में सतलज और काली के बीच में, नेपाल हिमालय काली और कोसी के बीच में, ठीक है, दोनों नेपाल से निकलती हैं, काली और कोसी। एक हिस्सा आपका काली यहाँ उत्तराखंड में निकलेगा तो कोसी आपका बिहार में। इसी तरह से सिक्किम हिमालयाज है, वो कोसी और तीस्ता एक रिवर है जो आसाम में निकलती है, फिर तीस्ता और दिबांग जो बाद में लोहित और ब्रह्मपुत्रा की बनती है। तो आपने देखा कि ये आपकी डिवीजन्स है। सबसे पहले कश्मीर हिमालयाज, कुमाऊं हिमालयाज जो आपका उत्तराखंड में है, नेपाल हिमालयाज, सिक्किम हिमालयाज, असम हिमालयाज। तो अब हम इनको देखने की कोशिश करते हैं। पहला कश्मीर वाला जो है, ये कश्मीर हिमालयाज आपका दिखाया है। यहाँ पे जो जिला पास है कश्मीर और लद्दाख के बीच में, डून्स हैं, लेक्स हैं, तो अलग अलग हैं। जो जिला पास यहाँ पे दिखाया गया है, काराकोरम है, लद्दाख है, जौसर है, ग्रेट हिमालयाज, धौलाधार, ये कश्मीर रेंज है। इसके बाद हम बढ़ते हैं कुमाऊं हिमालयाज में। कुमाऊं हिमालयाज में ये टालेस्ट सबसे ऊंचा हिमालयाज माना जाता है। यहाँ पे धौलगिरी, अन्नपूर्णा है, और सॉरी नेपाल वाले में मनसूला है, एवरेस्ट माकू है और काठमांडू वैलीज है। तो ये आपका नेपाल है। सिक्किम हिमालयाज आपको दिखा रखा है, कंचनजंगा इंडिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, तीस्ता यहाँ से आती है। आसाम हिमालयाज आपका नैरो है, और लेसर हिमालयाज क्लोज टू द ग्रेटर हिमालयाज, और इसमें नामचा बरवा, कूला कांगरी, बंगाल दूराज, ये सारी की सारी इसमें माउंटेन रेंज है। इसी के साथ एक और चीज़ हम देखना चाहेंगे कि जब इस तरह से जब रिवर इनिशियली ब्लॉक करती है, जो किसी पहाड़ को उठने से यहाँ पे जो रिवर आ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, डून्स बोलते हैं। जैसे देहरादून है, तो ये डून्स ऐसे फॉर्म्स होते हैं जिनमें से एक देहरादून है, वो शिवालिक और मसूरी रेंज के बीच में है। और लास्ट पार्ट में हम देखेंगे हिमालय का इंपॉर्टेंट क्या है। हमें पता है साइबेरिया से आने वाली ठंड को, जो कोल्ड है, उसको इंडिया में आने से रोकता है। अगर हिमालय ना होता
तो तिब्बत ना होता, रेनफॉल नहीं होती भारत में, और भारत शायद डेजर्ट होता, भारत से जो मानसून निकल जाता। हिमालयाज STWJ करके तो ब्रांच आती है विंटर रेन में, जो भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है उस बारिश को एक मेन कारण है। और जो ग्रेट फर्टाइल प्लेन, जो पेरिनिकल रिवर्स आती हैं, सदाबहार बहने वाली नदियाँ, चाहे गंगा हो, यमुना हो, ब्रह्मपुत्र हो, इंडस हो, सभी यहाँ से निकलती हैं और 12 महीने पानी बरसाती है। उनके साथ एलुवियल आता है और उसके साथ फर्टाइल सॉइल होती है। फॉरेस्ट वेल्थ हिमालयाज की यूनिक बायोडाइवर्सिटी से हम बात कर रहे थे, पूरी दुनिया की 10% बायोडाइवर्सिटी हिमालयाज में है। मिनरल है, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं और मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, और लेकिन बहुत सारी चीज़ों को हम एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस बहुत ही हास होने के कारण। हिमालय का लास्ट पार्ट पूर्वांचल बोलते हैं। पूर्वांचल का मतलब है जो नॉर्थ ईस्ट है आपका, ठीक है, मिजो देखो, गारो, खासी, जयंतिया जो हमारा है, इसको हम पूर्वांचल बोलते हैं। तो इस तरह से कर्व होने के साथ ही आपका हिमालयाज एंड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका पूर्वांचल है और ये यहाँ से शुरू होकर म्यांमार से होकर अंडमान तक एक सीरीज आती है। थैंक यू डियर।